Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture is about Amazon FBA product hunting or research by the man, and I am Rida Babar. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है और यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। तो इसका बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है? प्रोडक्ट रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक विनिंग आइटम्स या विनिंग प्रोडक्ट्स को निकालते हैं जिसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा हो। तो प्रोडक्ट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड टू चूज विनिंग आइटम्स, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल, जो कि अच्छी सेल जनरेट कर रही हो। द आइडिया इज़ टू सर्च फॉर प्रोडक्ट्स दैट यू कैन सोर्स for cheap and sell for competitive price with good profit margin in returns. In simply what we can say, we find a product with high sale and good profit margin by different methods or the process. This process is called product research. There are two elements of product research. One is finding the product idea and the second is validating the product idea. सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोडक्ट आइडिया निकालने होते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ोन पे सेल की जा सकती हैं, किस कैटेगरीज में हम जा सकते हैं, किन कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारा जो है वो प्रोडक्ट आइडियाज़ में आएगा। इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अमेज़ोन पे प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। देन उसके बाद जब हम प्रोडक्ट के आइडिया ले लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लग रही है, अमेज़ोन पे हम सेल कर सकते हैं। देन उसके हम वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन मीन कि उसको चेक करेंगे कि ये वाकई ही अच्छी है, इसकी सारी स्टैट्स वगैरह जो है वो सारा कुछ ठीक है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन द प्रोडक्ट आइडिया, यानी उस प्रोडक्ट आइडिया की नेक्स्ट उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो फाइंडिंग द प्रोडक्ट आइडियाज़, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। And the first method is bestseller method. In this method, we just simply go to the Amazon page and click on the bestseller tab. Then we find different products. Then we can select the categories, in which categories do you want to go, and finding the product ideas. And then we find the main keywords and then check the validity of the products. For the validity of the products, we use Helium 10 and the Jungle Scout. This is two paid tools that we use in product research and the product hunting. Now we see it in practically what is the bestseller method. I just simply open Amazon tab and now I click on bestseller. Then I choose the category. Yeah, you can choose any category in which you want to go. For example, I choose beauty and the personal cares. Then different products are shown in front of the screen in the category of the beauty and the personal care. You can take ideas from this product and select the keywords in which you want to go, and you can select any product you might seem good. Then you can validate the product. This is the first method that we can use for product ideas. And the second method is seller store method. Seller store, what is the seller store method? In this method, we just find the high revenue products and with high result reviews. Is mean we see the products that has high revenue and the high reviews.
You can check it from the bestseller or any extension result, or you can randomly check. You can choose any product. Then you may see which has the high revenue or the high reviews. If the product has high revenue and high reviews, you can go with this product. As you find, then just simply click on the high selling product store name and visit its Amazon store and check what other products they are selling, and the most likely you will find out very good product ideas from it. Like we see it practically now. यहाँ पे हम बेस्ट सेलर पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसे ही रैंडमली हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कितने हैं। तो यहाँ पे जिसके रिव्यूज़ या जिसका रेवेन्यू हमें अच्छा नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स का, तो उस प्रोडक्ट में हम चले जाएंगे। ये एक प्रोडक्ट है जिसके लेट्स सी, ये देखें, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें भी हम जा सकते हैं, इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके भी काफ़ी ज़्यादा हैं, का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट करें। तो इसके इस प्रोडक्ट पे हम जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे। देन इस प्रोडक्ट के जो स्टोर फ्रंट है वहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट दी स्टोर, यानी ये जो स्टोर का नेम है उसको हम विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे स्टोर के नेम पे, तो ये अब हमारे पास स्टोर का नेम ओपन हो गया। वहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने और कितनी प्रोडक्ट, कौन कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके ये सारी प्रोडक्ट्स इसने लिस्ट किए हुए हैं, तो यहाँ से भी हम प्रोडक्ट का आइडिया लगा सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट स्टोर फ्रंट को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना, किसी ने भी अगर कोई भी सेलर सेल करा है प्रोडक्ट्स को, तो उसने एक प्रॉपर रिसर्च की होगी, फिर ही प्रोडक्ट को लिस्ट किया होगा। तो यहाँ से हम सिंपली आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट्स का। ऐसे ही हम किसी और के स्टोर फ्रंट में चले जाते हैं। लाइक यहाँ पे हम कैटेगरी भी कोई और चूज़ कर लेते हैं, एनी डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं फर्स्ट। यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट आ गई हैं। अब किसी भी देख लेते हैं जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उसमें चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी अच्छे लग रहे हैं, इसके भी रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। इस तरीके से हम किसी में भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लाइक या नेक्स्ट हम लास्ट पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं इनके रिव्यूज़ बहुत कम हैं, लेकिन इनके ठीक है, इसके भी ठीक है, इसके भी ठीक है। तो रिव्यूज़ को देख के हम उसका स्टोर विज़िट कर सकते हैं कि ऑब्वियसली इसने ऐसे तो नहीं रिव्यूज़ ले लिए होंगे ना, तो इसने कुछ सेल किया होगा, फिर ही उसको रिव्यूज़ मिले होंगे। ये पुराना सेलर है, इसको आइडिया है कि कैसे इसने सेल करनी है, तो ये वो सारा सिंपली हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जब हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, देन यहाँ पे इसके स्टोर को विज़िट कर लेना है। यहाँ पे यहाँ से भी हम देख सकते हैं, देखिए अब इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, ये भी हमें शो हो रही है। यहाँ से भी हम आइडिया ले सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में हम जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं उसके ऊपर। एंड द थर्ड मेथड इज़ हाई रिव्यूज़ मेथड। वो भी सेम है, लेकिन जस्ट इसमें हमने सिंपली उसमें जो लास्ट मेथड था, सेकेंड मेथड था, उसमें ये था कि उसमें हमने उसका स्टोर विज़िट करना है। और ये यहाँ पे हमें देखना है जिस भी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं ना, उस पे हमने उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूअर हैं, जिन्होंने इस पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, उनकी आईडीज़ को हम चेक करेंगे। लाइक दिस, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये ही प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि रिव्यूज़ देने वाले पर्सन कौन है, इस पे किन लोगों ने इस पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे आ गए हमारे पास रिव्यूज़।
तो इसने कहा है कि इट्स प्रीटी गुड, इसने कहा है जेंटल ऑन माई स्किन। तो ये जो पर्सन है जिसने इस पर रिव्यूज़ दिया है, इस पर्सन के नेम पे हम क्लिक करेंगे। तो अब ये पर्सन की हम आईडी पे चले गए हैं। तो यहाँ से इसने 79 हेल्पफुल वर्ड्स हैं, 1 फॉलोइंग हैं, इतने लोगों को रिव्यूज़ दिए हुए हैं, इतनी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो जिन जिन प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ दिए हैं, क्या रिव्यूज़ दिए हैं, यहाँ से हम देख के भी प्रोडक्ट का आइडिया निकाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को लोग बाय कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट्स को रिकमेंडेशन से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट मेथड है उस पर अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर। अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर क्या है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम एक न्यू टैब को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर। और देन उसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे। ये जो पहला वाला, इसी पे क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी आई थिंक एक्सटेंशन मेरे पे में ऐड है, अगर ना हो तो यहाँ पे हम ऐड टू क्रोम करेंगे सिंपली। जैसे इसको रिमूव करके मैं दोबारा करके दिखा दी, लाइक दिस। इसको अब हमने ऐड टू क्रोम पे क्लिक किया, ऐड एक्सटेंशन किया, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन सिंपली क्या हो रही है, ऐड हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अभी इसको ऐड करने का हमें क्या बेनिफिट होगा, इसको ऐड होने दें। तो ये जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे हम कोई भी रैंडमली कीवर्ड सर्च करेंगे। लाइक अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कीवर्ड नहीं शो हो रहे, ठीक है। लेकिन जब ये ऐड हो जाएगी तब हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स को जब हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स इस पे हमें शो होना शुरू हो जाएंगे, इस एक्सटेंशन के डाउनलोड होने की वजह से। अभी ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कैसे ये शो होंगे। अभी यहाँ पे हमने लिखा था तो हमें कोई कीवर्ड शो हुआ था, जस्ट हम सिंपली यही शो हो रहा था। तो ये थोड़ा टाइम लेगी आई थिंक। इसको दोबारा कर लेते हैं, एरर रीलोड कर लेते हैं इसको। ऐड टू क्रोम, इसमें एरर आ रहा है। दिस आइटम इज ऑलरेडी बीइंग डाउनलोडेड इनटू द क्रोम। ओके, वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी आपके इस क्रोम में ऐड है। तो खैर जब ये ऐड हो जाएगी, अभी इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है तो यहाँ पे ये कीवर्ड शो करना शुरू कर देगी डिफरेंस के। अभी तो ये इसी की जो हमारी सर्चेज़ है ना वो शो हो रही है ना, लेकिन जब ये अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड शो होना शुरू हो जाएंगे इस एक्सटेंशन की वजह से। देख लेते हैं, शायद हमारे पास डाउनलोड हो। नहीं, यहाँ पे नहीं है। ओके, एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ हीलियम 10 बाय बॉक्स। हीलियम के 10 का जो बाय बॉक्स है वहाँ पे भी हम सिंपली जाएंगे, हीलियम उसके बाय बॉक्स को ओपन करेंगे। देन उसके बाद कोई भी वहाँ से हम कीवर्ड्स या कोई भी प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। लाइक प्रैक्टिकली देखते हैं अगर इसको, तो यहाँ से हम, ये हमारे पास है टूल्स, हीलियम को ओपन करेंगे। ये टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे।
और ब्लैक बॉक्स को हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ये देखें, ये ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हमने जाके यहाँ पे लोकेशन भी देख लेनी है। हम यूएसए में करें तो .com होना चाहिए, अदरवाइज़ हम यहाँ से लोकेशन चेंज कर देंगे इसकी। उसके बाद कीवर्ड पे यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी रैंडमली चूज़ कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी में हम जाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिटी या फिर सेल फ़ोन एसेसरीज़ कर लेते हैं, और ऐसे ही रैंडमली हम इस पे प्रोडक्ट का आइडियाज़ निकाल लेंगे। अभी सारे फ़िल्टर्स नहीं अप्लाई कर रही, नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें बाकी सारे फ़िल्टर्स को अप्लाई करूँगी, और फिर प्रॉपर हम उस पर देखेंगे कि हीलियम 10 कैसे काम करते हैं, इसका बाय बॉक्स। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने फाइंड कर दी हैं। तो बाद में इसको हम चेक कर लेंगे कि ये, बाद में इसकी वैलिडेशन कर लेंगे कि बाकी प्रोडक्ट सही है या नहीं है। यहाँ से हमने इसको कॉपी करेंगे, अमेज़ॉन के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हमने वो कीवर्ड जो हमने कॉपी किया था वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पे अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर भी डाउनलोड हो चुका है। तो ये हमें रिज़ल्ट शो कर रहा है। ये देखिए, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी कीवर्ड्स था हमने उस पर सर्च कर लेंगे। तो ये 1 मिनट थोड़ा डाउनलोड हो जाए, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ये शो होते हैं कीवर्ड्स अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर से। ये देखें, अब ये थोड़े से कीवर्ड शो हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे है कि आईफोन केस है, आईफोन केस हो गया, पीस आईफोन केस हो गया, आईफोन केस। उन्होंने शो कर दिया कि ये कीवर्ड्स हैं, इन पे इतनी सर्चेस आ रही हैं, ये सारा कुछ उन्होंने शो कर दिया। तो यहाँ से भी हम कीवर्ड्स का आइडियाज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने ये ब्लैक बॉक्स की हम बात कर रहे थे, ब्लैक बॉक्स से हमने वहाँ से कीवर्ड्स ले लेने और यहाँ पे अमेज़ॉन पे आके सिंपली सर्च कर लेने। उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास, हम कैसे आइडियाज़ ले सकते हैं प्रोडक्ट का, उस सेरिब्रो से ले सकते हैं। सेरिब्रो में हमें एसन पेस्ट करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट ले लेनी उसका एसन पेस्ट कर लें, तो वहाँ से हमें उस प्रोडक्ट के रिलेटेड काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। लाइक अगर हम हीलियम पे जाते हैं, यहाँ पे एक सेरिब्रो है, इसको ओपन कर लेते हैं। अमेज़ॉन से कोई भी एसन पेस्ट कर लेंगे। लाइक इसी प्रोडक्ट को अगर हम सर्च कर लेते हैं, या जो ऑलरेडी सर्च हैं उसको भी हम देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो गई हैं इन कीवर्ड्स के रेलेवेंट। तो हमने कोई भी प्रोडक्ट्स को देख लेना है, उसका एसन को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका एसन हम कॉपी कर लेंगे। अगर हम इस प्रोडक्ट के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लास्ट में इसकी प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे हमें इसका एसन मिल जाएगा। वहाँ से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। लाइक इस प्रोडक्ट की डिटेल ही नहीं है।
ये देखें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसका आइटम मॉडल नंबर क्या है, इसके अलावा एसन क्या है, एसन बोलते हैं अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक यानी कि नंबर होता है। सेरिब्रो पे आ गए हैं, यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे भी लोकेशन हमें देखनी होती है कि हम उसी लोकेशन में जा रहे हैं नहीं। यहाँ पे हमने ये जो एसन कॉपी किया था अमेज़ॉन से वो पेस्ट कर दिया और गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया, तो ये डाटा को फेच कर रहा है और यहाँ पे हमें ये शो कर देगा कि इसके इस पे कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो आइडियाज़ हम ले सकते हैं ना यहाँ से कीवर्ड्स का, मज़ीद हमें प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगर चाहें तो यहाँ पे भी हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया आईफोन केस कवर। इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से हम कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ बाय मैग्नेट में हमने क्या करना होता है सिंपली कि यहाँ पे ये देखें मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसमें हमने ये देखिए यहाँ पे हमने मैग्नेट पे क्लिक किया। सेरिब्रो और मैग्नेट का जैसे इतना डिफरेंस है कि सेरिब्रो में हमने एसन पेस्ट किया था और मैग्नेट में हम कोई भी कीवर्ड टाइप कर देंगे और इसके रेलिवेंट हमें आइडियाज़ मिल जाएंगे। लाइक हम पिज़्ज़ा पील पे ही बात करें तो पिज़्ज़ा पील को ही ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इस पे गेट कीवर्ड्स पे, तो उसके रेलिवेंट हमें डाटा मिल जाएगा। ये देखें पिज़्ज़ा पील के रेलिवेंट हमें कितने रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। 33,503 सर्चेस इस पे आ रही हैं इतने। और यहाँ से हम कीवर्ड्स भी ले सकते हैं और इसके अलावा इस डाटे को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लाइक आइडियाज़ ले सकते हैं ना, प्रोडक्ट के आइडियाज़, पिज़्ज़ा कुकिंग या कुकिंग के रेलिवेंट हम कोई चीज़ें सर्च कर सकते हैं तो रैंडमली आइडियाज़ ले सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। लाइक दैट इज नेम इज़ नेगेटिव स्टिंग मेथड। उस नेगेटिव स्टिंग मेथड में क्या होता है, जस्ट हमने अमेज़ॉन के पेज पे जाना होता है। सिंपली उसके सर्च बार में हमने नेगेटिव लिख के कुछ भी सर्च कर लेना है। लाइक ये देखें यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद कोई भी रैंडमली 9 वर्ड सर्च कर लें, यहाँ पे टाइप कर देंगे। नेगेटिव वाटर, देखिए अभी हमारे पास हुए हैं ये। ऐसे हमने रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। इस पे हमें डिफरेंस देखें, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी अच्छी शो हो रही हैं। तो यहाँ से भी हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में हम जा सकते हैं और किन किन प्रोडक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। देन उसके बाद वैलिडेशन, वो तो फिर नेक्स्ट है ना। तो ये आइडियाज़ के लिए हम यहाँ से इसके आइडियाज़ ले सकते हैं प्रोडक्ट्स के। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्च क्राइटेरिया क्या है इसका, इस पे बात कर लेते हैं। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि यानी कि हमने आइडिया कैसे कैसे ले सकते हैं प्रोडक्ट का। अब उस आइडिया को ये देखना है, उसकी वैलिडेशन करनी कि वाकई ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। उसमें हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम 8,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 8,000 से ज़्यादा लोग उसको सर्च करेंगे। रेवेन्यू 7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। रिव्यूज़ 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज़। एवरेज प्राइस जो है वो 14.99 टू 39.99 होनी चाहिए। एवरेज रेटिंग अबव 4.2 होनी चाहिए। BSR टॉप 3 सेलर्स का विद मैक्सिमम रिव्यूज़ हैव कंसिस्टेंट
BSR, यानी कि जिनके मैक्सिमम रिव्यूज़ भी हों, टॉप 3 पे जो सेलर्स बैठे हों, उनका BSR सेम होना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, थोड़ी बहुत हो तो इट्स ओके है। और जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वेट 1.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीजनल नहीं हो, ट्रेंडी ना हो, अमेज़ॉन डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। अब इन सारे जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया आपके माइंड में फ़िक्स होना चाहिए कि यूएस के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट हंटिंग जब यूएस से मार्केट में हम करते हैं तो ये इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। इसके रिव्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो रिव्यूज़ इसके देखो, रिव्यूज़ क्या होता है कि जिसके कम रिव्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ यानी जो भी उनको लोग बाय कर रहे हैं तो उनके बाद उनको रिव्यूज़ देते हैं, तो जिसके कम रिव्यूज़ होंगे तो मीन उसका कंपटीशन कम होगा, उसके साथ हमें compete करना कम होगा। इसके हाई रिव्यूज़ होंगे जिस भी सेलर्स के, तो उसके साथ हमें compete करना मुश्किल होगा। लो रिव्यूज़ का ये भी मतलब हम ले सकते हैं कि अभी नया नया सेलर आया है, इसके पास इतने रिव्यू इसीलिए नहीं है, ठीक है। और हाई रिव्यूज़ मीन बहुत पुराना सेलर बैठा है, तो ऑब्वियसली हमें उस तक उसको compete करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द न्यू सेलर्स। और इसमें ये देखते हैं कि दे मस्ट बी एटलीस्ट 7 सेलर्स इन टॉप 20 विद लेस देन 400 रिव्यूज़, कि जो टॉप 20 पे सेलर्स बैठे हैं उनके 400 से कम रिव्यूज़ हों। इसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे। उसके बाद सर्च वॉल्यूम को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर्च वॉल्यूम होता है कि कितने लोग एट अ टाइम, द नंबर ऑफ टाइम द कीवर्ड्स, उस कीवर्ड्स को सर्च करें अमेज़ॉन पे। जितनी हायर सर्च वॉल्यूम होगा इस उतनी ज़्यादा उस पर ट्रैफिक आएगी ऑब्वियसली। तो सर्च वॉल्यूम जो है वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 8000 से अबव होना चाहिए। उसकी एवरेज प्राइस 14.99 to 39.99 होनी चाहिए। और जो एटलीस्ट 12 सेलर्स इन टॉप 20, अगर हम कंपटीटर्स को देखते हैं तो उसमें जो 12 सेलर्स हैं उनकी यानी कि उनकी प्राइस एटलीस्ट इन इन क्राइटेरिया के बिटवीन हो। और हम जो प्राइस है उसको 14.99 और 39.99 के दरमियान ही क्यों रखते हैं। अगर इससे कम होगी तो फिर ये होगा कि हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं आएगा, बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन आएगा। ऑब्वियसली अगर हम देखें $10 की अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस पर शिपिंग कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट की जो प्रिपरेशन के चार्जेस आएंगे, उस पर लोगो वगैरह लगवाएंगे उसके चार्जेस आएंगे, प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट होगी, तो वो राउंड अबाउट उस पर हमें $7-8 का एक्सपेंस आ जाएगा। $3 जस्ट हमें उसमें से सेविंग होगी पर प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा शिपिंग और वहाँ पे अमेज़ोन में रखने की उसकी फ़ीस, तो बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंस आ रहे हैं। तो जो यानी प्रॉफिट है वो तकरीबन 1, 1.5 या $2 तक ही जाएगा इसका मैक्सिमम, अगर कोई प्रोडक्ट $10 की सेल करें। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएं जिसकी 15 या फिर 14.99 लाइक 15 इतनी प्राइस हो या इससे ज़्यादा प्राइस हो। फिर ये होता है कि हमें एटलीस्ट कोई 7-8 डॉलर पर यूनिट्स बचने चाहिए ना, इतनी एटलीस्ट प्रॉफिट हो। हमने ये देखना होता है कि हमें 25% प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर हाँ, अब देखें, आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अगर 39.99 से ज़्यादा में जाएँ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होगा। हाँ, उसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा लेकिन उसमें आपका बजट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा। इसलिए हमने क्राइटेरिया न्यू बीज के लिए एक स्पेसिफिक होता है कि जो न्यू सेलर्स हैं तो इस क्राइटेरिया को अगर मीट करते हैं तो उनकी सक्सेस की रेशो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। मेक श्योर टू ऐड वैल्यू एडिशन द सेम प्राइसिंग, सेम प्राइस रखें। अगर कोई कंपटीटर्स एक चीज़ को बेच रहा है, लाइक पिज़्ज़ा पील को बेच रहा है, $20 की वो सेल कर रहा है, तो हम क्या करें कि उस $20 में पिज़्ज़ा पील के साथ एक नाइफ़, ठीक है, फ्री में उसको वैल्यू ऐड कर दें। तो इससे ये होगा कि लोग एक चीज़ फ्री में उनको मिल रही है तो आपकी फिर जो प्रोडक्ट है उसको बाय करने को प्रेफर करेंगे। Competing products are goods and services that your target market might choose over yours. Like यानी कितने लोग आपको compete कर रहे हैं। आप अगर किसी कीवर्ड्स पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करें तो उसके
कंपटीटर्स आपके कितने, कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है उस पर ना, वो हम देखते हैं कि वो 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको सिंपली अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये अमेज़ोन पे गए हम, ठीक है, यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पे, लाइक पिज़्ज़ा पे लिख लिया हमने, इसको सर्च कर लिया। जब हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास 554 रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कि हमारा क्या क्राइटेरिया, यानी इतनी प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड्स पे इतनी प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये अच्छी प्रोडक्ट है कि इस पे, तो यानी ये एक पहला क्राइटेरिया। तो कंपनी पे इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर ये 2000 से ज़्यादा हो तो फिर हम इस प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे। अगर ये 2000 से कम है, और मोस्टली प्रेफरेबल तो ये है कि 1000 से कम हो, लेकिन 2000 से कम हो तो उस प्रोडक्ट में भी हम जा सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि 1000 से ही कम हो, ताकि उसके अगेंस्ट जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है वो कम से कम होने चाहिए। कैसे हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को चेक कर लेंगे। उसके बाद रेवेन्यूज़ का कितना है, कि रेवेन्यू क्या है, द इनकम जनरेटेड थ्रू बिजनेस ऑपरेशन। अगर टॉप 20 में सेलर्स को देख रहे हैं तो उसमें 7 सेलर जो हैं उनका 7000 से ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। अमेज़ॉन टॉप 20 में 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमेज़ॉन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर अमेज़ॉन डोमिनेंट होगा तो सेल ऑब्वियसली अमेज़ॉन के पास जाएगी, आप उसको अमेज़ॉन को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और कोई भी बड़ा ब्रांड लाइक नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, वो उसको सेल ना कर रहा हो और उसकी लिस्टिंग रिपीट ना हो रही है, टॉप 20 में अगर उसकी लिस्टिंग 5 टाइम्स आ रही है एक ही ब्रांड की, तो उस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाएंगे। ट्रेंडी और सीजनल ना हो, कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते जो थोड़ी देर के लिए हो, इसका वह नुकसान ये होता है। वैसे तो जो एक्सपर्ट सेलर हैं वो उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू सेलर्स हैं उनके लिए सजेशन ये है कि वो इस ट्रेंडी, यानी जो थोड़े से ट्रेंड के लिए आए हैं, उस प्रोडक्ट को लिस्ट ना करें, ना ही सीजनल प्रोडक्ट में जाएं। तो उसका ये डिसएडवांटेज होगा, जब तक वो उसको लिस्ट करेंगे तो उसका सीज़न आउट हो चुका होगा, और देन उसके बाद उनकी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी। वो नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तो फिर ही उसको सेल होगी, और इतनी देर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो पड़ी रहने की वजह से उनकी यानी कि जो वेयर हाउस में पड़ी है उसका एक्सपेंस उनको अलग से बियर करना पड़ेगा, तो वो डिसएडवांटेज में जाएंगे, यानी उनको नुकसान होगा, लॉस में जाएंगे वो। ये इसका डिसएडवांटेज है। हाँ, अगर कोई पर्सन एक बहुत अच्छी मार्केट रिसर्च करता है, उसको लगता है कि जैसे कि कोविड-19 में ये जो फेस मास्क ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था, तो इसको बहुत से लोगों ने इसको बहुत इसकी सेल जनरेट की है इससे, लेकिन फिर थोड़े से टाइम के लिए ही आया था। उसके बाद ये क्या हुआ, अब इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट्स में हम ना जाएं। इसके बारे में भी थोड़ा सा चलिए इसको भी बता देती हूँ मैं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, जस्ट हम सिंपली एक न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे हम गूगल ट्रेंड लिखेंगे, जब गूगल ट्रेंड लिख के सर्च करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट पे ही हम क्लिक कर लेंगे इसके। यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही रेंडमली लिख देंगे, लाइक हम पिज़्ज़ा फील को चेक करना चाह रहे हैं। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे हमने देखना होता है कि जिस भी प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं वो किस मार्केट की है, मार्केट चूज़ कर लें। हम यूनाइटेड स्टेट में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट रख लिया। पर डे की नहीं देख रहे हैं, हम 5 ईयर्स का देखते हैं, 5 ईयर्स का रख लेंगे। कैटेगरी तो ये नहीं हम चूज़ करेंगे। एक प्रोडक्ट है, देखें अब यहाँ पे ये हमने रैंडमली ऐसी NBA प्ले ऑफ्स लिख दिया। ठीक, अगर हम कोई ये प्रोडक्ट हो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत कम है इसका ट्रेंड, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, फिर कम होता गया और बहुत देर तक कम रहा।
अगर इतनी देर तक ये कम रहेगा, यानी लाइक जून 23 2019 से लेकर ये जुलाई तक ये इसी तरह रही है ये प्रोडक्ट, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुई है इसकी सेल, फिर कम हो गई है, फिर तो ये सारी अगर इसी तरह कोई प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेंगे तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ जो इसका ड्यूरेशन होगा, ये इसका ड्यूरेशन, ये जिसमें इसकी सेल ही नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंस पड़ते रहेंगे, इस पे वेयर हाउस के चार्जेस पड़ते रहेंगे और हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। इसलिए हम 20 में नहीं चाहते। मैं आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी होती है हमने जिसका जो गूगल ट्रेंड है वो अबाउट 25 हो। ये देखें, ये प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं तो इसका जो गूगल ट्रेंड है बहुत अच्छा है, अबव 25 है। ठीक है, तो ये इसमें भी फ्लक्चुएशंस आ रही है, लेकिन बिल्कुल इसकी सेल गिर नहीं रही, ज़ीरो पे नहीं आ रही। ठीक है, तो जिसका गूगल ट्रेंड 25 से अबव हो तो उस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद वेट इसका 1.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्ट हम वो चूज़ करते हैं जो जिसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ हो। ज़्यादा बहुत बड़ी जो साइज़ की प्रोडक्ट्स हैं उसको शिप करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम एक नॉर्मल साइज़ की प्रोडक्ट्स में ही जाते हैं, नो ओवर साइज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च हम हीलियम के ज़रिए कैसे करेंगे और जंगल स्काउट के ज़रिए कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम बाय टूल्स और बाय मैनुअल मेथड के ज़रिए प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख